Hello everyone, मैं BL Sharma Maths and discussing squares and square roots, and this is class 8 mathematics, and this is continue. So now the questions are on your screen. Question number 6, that is exercise 5.2 continue. For each of the following, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. ये जो हमें नंबर्स दे रखे हैं उसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हो जिससे डिवाइड करें और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये हमारे पास नंबर है, दिस नंबर इज 252। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज करें। डिवाइड बाय 2, then it is 126, again divide by 2, then it is 63, divide by 3, then it is 21, divide by 3, that is 7, divide by 7, that is 1. So 253 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 7. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है इसका पेयर बन रहा है 2 and 2, then 3 and 3, लेकिन ये 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो this number is 7 and it is not having pair. So what we do, we divide the number by 7. जिसका पेयर नहीं बन रहा होता है उस नंबर से हमको डिवाइड कर देना चाहिए। That is why we can say that divide 257 by 7, and when you divide 257 by 7, that is 257 by 7, that is 36, and square root of 36 is 6 into 6, that is 6. आंसर तो हमारा क्या आंसर हुआ, एक नंबर तो ये हुआ कि हमें कौन से नंबर से डिवाइड करना चाहिए। तो दैट इज व्हाट, हमें डिवाइड करना चाहिए कौन सी नंबर से, हमें डिवाइड करना चाहिए 7 से। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आता है उसको 36, उसका स्क्वायर रूट कितना है, 6। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। Then we come to the second part, and that is 2923. 2923 का भी हमें प्राइम फैक्टर्स मेथड से मींस फैक्टर करना चाहिए, प्राइम फैक्टर्स करने चाहिए। और देखिए मैं इसके फैक्टर्स कर रहा हूँ। दिस इज सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में हमने लिखा, देखिए ये 2, दिस इज सेकंड पार्ट, दैट इज 2925। 3 से 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 3, that is 975. Again divide by 3, that is 325. Again divide, now it is not divisible by 3 but divisible by 5, so that is 65. Divide by 5, that is 13, and divide by 13, that is 1. So prime factors of 2, 9, the prime factors of the number, that is 2925, that is 3 into 3 into 5 into 5 into 17. यहाँ देखिए 3 का हमारे पास एक पेयर बन रहा है, ये हमारे पास एक पेयर है, 5 का भी एक पेयर है, लेकिन जो ये नंबर है हमारे पास, विच नंबर, this number is not having any pair, so we have to divide by, sorry, this is not 17, this is 13 actually. So I am writing here 13. This 13 is not having pair.
This 13 is not having pair. So we can say that this number should be divided. Therefore, 2925 should be divided by 13. और 13 को डिवाइड करेंगे 2925 को 13 से आप डिवाइड करिए. That number is 225. And we know that square root of 225 is 15. Right? So there are two answer. हमें जो डिवाइड करना है कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से, वो नंबर हमारे पास है. कौन सा नंबर है? That number is 13. And after division we get 225 and its square root is 15. So the two answers are, दो हमारे पास जो भी आंसर है, एक तो है 13 and other is 15. Then we come to the third part, and here it is, third part is this, that is 396. 396 को स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है उससे आप डिवाइड करें, और वो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए. पहले देखिए, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स लेने होंगे थर्ड पार्ट के. So the third part here is 396, right here 396. ये 396 2 से divisible है, that is 198. Again divide by, now it is divisible by 2. So that is 99. 99 is not divisible by 2, it is divisible by 3. So 33 is a 99. Again divide by 3, that is 11. Now divide by 11, that is 1. So prime factors of 396 is 2 into 2 into 3 into 3 into 11. तो देखिए यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें इसका एक पेयर बना, 3 का भी एक पेयर है, लेकिन 11 का पेयर नहीं. We are not having pair of 11 here. तो क्या आंसर हुआ? किससे डिवाइड कर देना चाहिए हमें? Therefore we can write that therefore 396 be divided by 11. और देखिए मैं 396 को 11 से डिवाइड करता हूं. You also have to divide by 11. 396 divided by 11, that is 36, and square root of 36 is now 6. So 6 is answer and 11 is answer. There are two answers. दो आंसर पूछे हैं कि कौन से स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना चाहिए, और डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आता है, जो भी हमारे पास जो नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट क्या है. ये 36 है और 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 है. Now we can go for the we should go for the next part of it, and next part is part 4. तो देखिए मैंने पार्ट 4 पे जाएंगे और पार्ट 4 क्या है देखेंगे. पार्ट 4 है 2625 को किससे डिवाइड करें, 2645 को किससे डिवाइड करें कि जो इसका मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. देखिए ये पहले इसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे, और प्राइम फैक्टर्स के लिए हमें चाहिए, वी आर डिस्कसिंग नाउ द फोर्थ पार्ट, दैट इज 2645. 2645 is divisible. This number is divisible by it is not divisible by 2, not divisible by 3, but divisible by 5. So that is 529. 529 is directly divisible by 23. So we can write here 23. Now 23 is when divided by 23, it is 1. So 2645 का जो प्राइम फैक्टर है 5 है, 23 है और 23 है.
आप यहाँ देखेंगे कि देखिए ये जो प्राइम फैक्टर्स है इसका पेयर ये 23 का पेयर है, लेकिन इट इज नॉट हैविंग द पेयर, ये 5 का पेयर यहाँ पे नहीं बना है। तो इस पेयर को हटाना पड़ेगा। फॉर दैट वी कैन से दैट therefore 2 6 4 5 be divided by 5 to make it a perfect square। और डिवाइड करने के बाद देखते हैं, 2 6 4 5 को आप 5 से डिवाइड करिए, वैल्यू डिवाइड that is equal to 529 एंड 529 का जो अब आप स्क्वायर लेंगे तो देखिए आपका अच्छा बिल्कुल तरीका है, आप इस 5 को हटा दीजिए। क्या पेयर बन गया? 23 इंटू 23, सो यू कैन राइट 23 into 23, so square root of 529 is 23 आंसर्स। तो 2 आंसर जो हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, one is डिवाइड बाई 5 एक आंसर है, और दूसरा है कि आफ्टर डिवाइडिंग 2 6 4 5 by 5, 520 is left and the square root of 529 is 23. So these are the answers of this question. Now we go for the next part, and here next part is on your screen. टू 800, आप देखिए 2800 है, उसके वही एक ही सेम तरीका है उसका। आपको मीन्स प्राइम फैक्टर्स करने चाहिए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2800 का आप मेरे साथ करिएगा। व्हाट आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2800? देखिए यहाँ पे लिखिए आप 2800, you divide by 2, that is 1400, again divide by 2, that is 700, again divide by 2, that is 350, again divide by 2, that is 175. Now this number is not divisible by 3, this is also not divisible by 2 and 3 both, so divide by 5, that is 35, again divide by 5, that is 7, and when you divide by 7 it is 1. So the prime factors of 28 are, देखिए मैं यहीं पे इनके पेयर बना देता हूं। इनका जो पेयर यहाँ पे बन रहा है, देखिए एक पेयर ये 2 का यहाँ बन चुका है, दूसरा पेयर ये 2 का यहाँ बन चुका है, और ये पेयर ऑफ 7 भी बन चुका है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे इस नंबर का कोई पेयर नहीं है, और वो कौन सा नंबर है? दिस नंबर इज 7. So the answer is, it means you have to divide so 2800 should be divided by to make it a perfect square। ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है, और जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे 2800 डिवाइड बाय 7, दैट इज 400, एंड तो अब इसका कैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं? देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20 into 20, स्क्वायर रूट में इस दो पेयर में से एक आंसर ले लीजिए, दैट इज 20 आंसर। और आपको वैसे भी करना हो तो इस 7 को हटा दीजिए। देखिए मैं इस 7 को हटा देता हूं यहां से, ये देखिए इसको आप रिजेक्ट करिए, तो देखिए ये पेयर है 2 2 जा 4, इसमें से 2 लीजिए, और इसमें से 2 लीजिए, और इसमें से 5 लीजिए। 2 2 जा 4, 5 जा 20, so 20 is the answer। So there are 2 answers, one is means 7 and other is 20। डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास 400 आएगा, और 400 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल बी 20। Now we go for the next question, next part of it।
देखिए ये जो नेक्स्ट पार्ट इसका है और ये नेक्स्ट पार्ट है मीन्स 1620। 1620 में हम किससे डिवाइड करें कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, क्योंकि वही परफेक्ट स्क्वायर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप फाइंड आउट करिए। देखिए आई एम राइटिंग हियर 1620 दैट इज 6 पार्ट। ये मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने 6 पार्ट। 1620 को आप 2 से डिवाइड करिए, दैट इज 810। फिर से 2 से डिवाइड करिए, दैट इज 405। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, सो डिवाइड बाय 3, दैट इज 135। अगेन डिवाइड बाय 3, दैट इज 45। Again divide by 3, that is 15. Again divide by 3, that is 5. So 1620 का जो प्राइम फैक्टर्स है, देखिए 2 इंटू 2। देखिए ये एक पेयर बना यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 1 पेयर। 3 इंटू 3 ये सेकेंड पेयर। 3 इंटू 3 ये थर्ड पेयर। लेकिन बट दिस 5 इज नॉट हैविंग पेयर हियर, यहाँ पे इसका कोई पेयर नहीं है। सो आई एम राइटिंग हियर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5। सो this 2 is having pair, this 3 is having pair, this 3 is also having pair, but this 5 is not having पेयर। लेकिन इस 5 का यहाँ पे कोई पेयर नहीं है। दैट इज वाई वी हैव टू डिवाइड 1620 बाय 5। देयरफॉर 1620 शुड बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। और देखिए अब मैं इसको 1620 को 5 से डिवाइड करता हूँ, and 1620 divided by 5, that is 324. Up and the square root of 324, that is 18। 18 into 18, that is 24। और आपको अगर इसका मीन्स स्क्वायर रूट लेना है तो आप क्या करिएगा कि ये जो आपका नंबर है, ये वाला नंबर, इसको हटा दीजिए 5 को। अब 5 को जैसे ही हम हटाएंगे, फिर अब पेयर बनाइए। पेयर हमारा बना देके एक पेयर ये बना, इसमें से 2 लीजिए, इसमें से 3 लीजिए और इसमें से 3 लीजिए। 2 3 जा 6 3 जा 18। So 18 is the answer of this question. So here are 2 answers. First of all, 1620 should be multiplied by 5 to get a perfect square. और जो जब डिवाइड करेंगे 3 to 4 आता है, 3 to 4 का स्क्वायर रूट 18 होता है। So we have done all 6 part of question number 6 of this exercise. The students of class 8th of a school donated rupees 240 and 2,401 in all for Prime Minister's Relief Fund. Find each student donated as many rupees as number of students in the class. जितने क्लास में स्टूडेंट्स है, तो देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन आखिर क्या है। अगर क्लास में देखिए एग्जांपल है, अगर एक स्टूडेंट है तो हर एक ने 1 रुपया दिया तो टोटल 1 दिया। अगर 2 स्टूडेंट है एक क्लास में तो हर एक ने each one is paying 2 rupees, so total amount will be 4 rupees. Let the class has means 8 student, each is paying the rupees 8, so that will be 64। तो क्या करना पड़ा कि अगर मुझे ये 64 का पता हो कि 64 है टोटल अमाउंट, तो मुझे इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे आई हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 64। Similarly to means to get the amount
by each student I have to take the find the square root of 2401. Find square root of 2401. Each student will be paying. तो देखिए आई एम राइटिंग हियर 2401 7 into 7 into 7 into 7 49 into 49 that will be 24001. अब मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2401 देखिए मुझे इसमें से ये दो पेयर है इस पेयर में से 27 में से एक 7 लेना पड़ेगा आई एम राइटिंग हियर 17 और ये जो सेकंड पेयर है मेरे पास ये वाला इसमें से भी मुझे 17 लेना पड़ेगा तो आई हैव टेकन मल्टीप्लाइड बाय 7 देखिए फिर से देखिए हमने क्या किया कि ये जो 7 है इस पेयर में से एक 7 लिया और इधर से भी एक 7 लिया और जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे when we multiply the means the two numbers that is 49. तो कितने स्टूडेंट है क्लास में therefore number of students that is 49 and this is answer of this question. 2025 means 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. जितने रोज है उतने ही उस रो में प्लांट है देखिए अगर 5 रोज है तो उस रो में 5 प्लांट है अगर 10 रोज है तो उस रो में 10 प्लांट है तो ईच रो के लिए हमें नंबर ऑफ रोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज के लिए हमें लेना पड़ेगा फैक्टर्स लेने पड़े मीन्स फाइंड आउट करना पड़ेगा मीन्स 2045 का हमें फैक्टर्स लेना पड़ेगा मीन्स स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो 2025 का आप प्राइम फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट लेंगे दैट इज 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 देखिए और ये इसका है तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा 2025 में से तो एक यहां से पेयर बन रहा है आई हैव टू टेक 1 3 फ्रॉम हियर सेकंड मैं एक यहां से 3 लूंगा और ये थर्ड है यहां से मैंने 5 लिया तो देखिए हमने क्या किया कि हमने एक इनमें से 3 लिया और एक यहां से 3 लिया इसमें से और एक अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा now you multiply and you will be getting 3 3 are 9 4 5 are 45 therefore number of rows in the garden are 45 and this is answer. Question is find the smallest square number that is divisible by each of the number 4 9 and 10 वो नंबर बताइए सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो 4 9 और 10 से डिविजिबल भी हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं और वो नंबर होगा मल्टीपल ऑफ एलसीएम जो भी इसका एलसीएम आएगा उसका मल्टीपल होना चाहिए तो देखिए उसके लिए पहले हमने इसका ये देखिए ये एलसीएम के लिए एक टेबल बनाई हमने और 4 9 10 देखिए किससे डिविजिबल है
अब 4 9 10 में से कोई भी एक नंबर देख लीजिए, ये 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे हमने लिखा 2, ये 2 2 जा 4। जो नंबर डिविजिबल नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, उसको एज इट इज लिखते हैं। और 2 5 जा 10। देखिए यहाँ पे ये 4, 2 से 2 2 जा 4, 9 डिविजिबल नहीं है तो 9 को एज इट इज रखा। 10 इज डिविजिबल बाय 2, 2 5 जा 10। नाउ अगेन वी आर टेकिंग कौन सा नंबर है, 2 लिखिए तो 2 1 जा 2। 9 डिविजिबल नहीं है, पुट 9 एज इट इज। 5 डिविजिबल नहीं है, पुट 5 एज इट इज। Now you divide. This 9 is divisible by 3, so 1 as it is, 3 3s are 9, 5 as it is. अब 3 से डिवाइड करिए, 1 as it is, 3 1s are 3 as it is, and 5 as it is. This number is divisible by 5, 1 as it is, 1 as it is, and 5 1s are 5. तो देखिए LCM of 4 9 and 10, that is 2 into 2, this 2 into those 2 into 3 into 3 into 5, ये इसका एलसीएम हुआ। और दैट नंबर इज 1800। अब यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो नंबर कैसा होना चाहिए, देखिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये पेयर बन चुका है, ये 3 का भी पेयर बन चुका है, लेकिन ये 5 का पेयर नहीं बना है। तो हमें 5 का पेयर बनाना पड़ेगा, और 5 का पेयर बनाने के लिए हमें इसको नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय, इसका जो एलसीएम कितना आया, दैट इज 180। इस नाउ दिस 180 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट? क्योंकि हमें इस नंबर का पेयर बनाना है, हमें इस नंबर का पेयर बनाना है, ये 5 का पेयर हमें बनाना है। और 5 का पेयर तभी बनाएंगे जब इस पूरे नंबर को, जो इनका प्रोडक्ट 180 है, उसको 5 से हम क्या कर दें, वी मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, द नंबर विल बिकम 900। तो अब आपको 900 का मीन्स स्क्वायर रूट आपको ले लेना चाहिए। 900 इज 30 इंटू 30। ये 2 पेयर्स में से व्हाट इज आंसर, 30। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि जो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और हमारा आंसर आ गया है 5। So 5 is the answer of this question. The smallest number by which 4 9 and 10 should be multiplied by 5 to make it a perfect square. So answer is 5. Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 8 15 और 20। देखिए जो भी नंबर डिविजिबल होगा वो या तो एलसीएम होगा या मल्टीपल ऑफ एलसीएम होगा। तो इसलिए हम पहले इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स 8 15 एंड 20। इसके लिए देखिए आई हैव रिटन हियर 8 5 15 एंड 20। So the number is divisible by first divide by 2। देखिए 2 से 6 शो किया, 2 4 जा 8, 15 डिवाइड नहीं होता एज इट इज, एंड 2 10 जा। फिर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 15 नहीं हो रहा एज इट इज, एंड 2 5 जा 10। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा 1, लेकिन ये 15 और 5 डिवाइड नहीं हो रहे। अब देखिए नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है 1 एज इट इज, 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ये नंबर फिर एक प्राइम नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है 1 1 एंड 1। आप अगर यहाँ पे गौर करेंगे, ढंग से देखेंगे तो देखिए, तो आप देखेंगे कि ये केवल इस 2 का ही पेयर बन रहा है। ये जो 2 है इसी का पेयर बना है, ना तो इस 2 का पेयर बना है, ना 5 का बना है, ना इसका बना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई। देयर इज नो पेयर। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम ऑफ
8, 15 and 20 is 2 into 2 into 2 into 5 into 3. What is LCM? That is 120. लेकिन 120 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. द क्वेश्चन इज द नंबर शुड बी कैसा नंबर होना चाहिए? ये स्क्वायर नंबर होना चाहिए. एंड दिस इज नॉट ए स्क्वायर नंबर. इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक तो हमें पेयर बनाना पड़ेगा. यहाँ पे केवल हमारे पास एक ही पेयर बना हुआ है 2 का. एक इसका पेयर हमारे पास नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 2. इसका पेयर भी हमारे पास नहीं है, देन मल्टीप्लाई बाई 2. इसका पेयर भी हमारे पास नहीं है, तो मल्टीप्लाई बाई 2. तो क्या करेंगे कि इस 120 को देखिए, एक 2 से मल्टीप्लाई करिए, एक 5 से मल्टीप्लाई करिए और एक 3 से मल्टीप्लाई करिए. क्यों करिए? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसका पेयर नहीं बनाना है. पेयर बनाने के लिए 2 से करिए. 5 का पेयर नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे 3 का भी पेयर नहीं है. अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी योर आंसर, एंड दैट इज आई थिंक 120, दैट इज 30 to 3600. So 3600 वो नंबर है. दिस इज required smallest square number divisible by 8, divisible by 15 and divisible by 20. So the answer is this. कौन सा हमारे पास आंसर हुआ? ये हमारा आंसर हुआ कि जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 3600. So this is answer. We can write here. So answer is 3600. So इस क्लास में बस इतना ही. कीप वॉचिंग. थैंक यू.